Hello, Matujima, and you're watching Morning Pulse on Amir TV. The water level of the Ganges River in Haridwar is currently at 293.50 meters, which is 50 centimeters below the danger mark. Continuous monitoring and patrolling of flood structures and embankments are being conducted to ensure they remain in secure condition. Information from upstream areas is regularly provided to local district administrations, disaster management departments, and administrative officers in downstream districts of Uttar Pradesh such as Bijnor, Parwan, Kasanj and Farrukhabad. अभी हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर 293.50 मीटर है, जो खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर कम है। इस तरह नजर बनाई गई है सर, हमारे द्वारा जितनी भी हमारी फ्लड के स्ट्रक्चर्स हैं और हमारे तटबंध हैं, उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, पेट्रोलिंग कराई जा रही है तटबंधों की। सभी तटबंध हमारे सुरक्षित स्थिति में है। जहाँ तक सूचनाओं की बात है, अपस्ट्रीम क्षेत्रों से हमारे द्वारा सूचनाएं प्राप्त करके स्थानीय जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग और डाउन स्ट्रीम में हमारे उत्तर प्रदेश के जितने जनपद आते हैं, बिजनौर, बदायूं, कासगंज, फर्रुखाबाद इत्यादि में हमारे द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को सूचनाएं नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। लगातार पहाड़ों में और मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश हो रही है। हरिद्वार में भी पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है, तो बारिश होगी तो स्वाभाविक रूप से जलस्तर में वृद्धि होगी। पहली बार सर इतना लेवल देखा जा रहा है, कितना क्यूसेक पानी आ रहा है? इस सत्र में अभी ये अच्छा लेवल है, इससे ऊपर लेवल अभी नहीं गया है और 1,60,000 क्यूसेक के आसपास डिस्चार्ज अभी पास हो रहा है। जो सर गंगा से लगे हुए इलाके हैं, वहाँ पर किस तरह की देख मीडिया के माध्यम से, स्थानीय प्रशासन के माध्यम से और विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से जो तटीय क्षेत्रों में लोग रहते हैं, समीपवर्ती क्षेत्रों में लोग हैं, उनको चेतावनी का प्रचार प्रसार कराया गया, मुनादी कराई गई है, तटवर्ती इलाकों से लोग दूर रहें, जिससे कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो क्या लगता है सर, जितना बारिश हो रही है ये लेवल बढ़ेगा? अगर बारिश लगातार जारी रहती है तो निश्चित रूप से जलस्तर में वृद्धि होगी। सर खतरे का और चेतावनी का लेवल क्या है? खतरे का निशान 294 मीटर है, चेतावनी स्तर 293 मीटर है। अभी इन दोनों के बीच में गंगा नदी का जलस्तर हरिद्वार में बना हुआ है। सर केनाल है, क्या उसका भी सिल्ट खाली है? अभी सिल्ट जो है मानक के अनुसार ठीक रेंज में है, तो कैनाल का भी संचालन हो रहा है। अगर सिल्ट में पीपीएम में वृद्धि होती है तो कैनाल को बंद कराया जाएगा। Indian badminton player Unnati Huda advanced to the second round of the BWF World Championship after defeating Myanmar Ted Dar Tuzar in the women's singles first round. Reflecting on her performance, Huda said she was pleased with her ability to control the drift during the first half of the match. She admitted to making a few errors and rushing during the closing stages, but said she managed to regain her composure and control the match. I feel like it was a good match, and I'm happy that the first I was able to control the drift pretty well, but in the second half during the finishing I made few errors and just maybe rushing a little bit, but then I controlled myself and yeah. I just wanted to know, in the first game, were you also trying to maybe experiment something, because in the second game you were a bit more attacking? Yeah, I don't know, in the starting I was just understanding the court conditions and everything, but yeah, just because both of the sides are very much different. So from the first game that I played, there was like my attack was not going so good, so I changed my plan and did मैंने थोड़ा tosses और ये सब का use किया, and then her attack was going well from the first side. Then like I got a few bit idea like how the courts are going on, so I was able to adapt well in the second game. Unnati, when you look at the drift factor that was there, when you switched ends, did it result in a couple of errors near the net or near the forehand part? Did it result in because of the drift factor? How was it? No, I feel like that was so my my hand, like little bit my hand mistakes. So, I mean, you won the game, but what all the other takeaways? Yeah, I think every match will be a different match. Tomorrow I'll be playing against Michelle, so I'll prepare well for tomorrow's match. But yeah, I played today, so got an idea of the court and everything, but we cannot say because drift can change sometimes. So yeah, but it really gave me confidence, and I would like to the people, all the support I have got, like all the people who came for this match and supported me, thanks to them. And yeah. Unnati, was there any conversation between you and your coach, because the first set was very close, the second set you had a massive lead?
and then she covered up. So was there any conversation between you and the coach? Not as such, but yeah, like if it's that such lead, I was in between trying my few of my strokes also because I had so much lead. So he also said ki like you can try few of your strokes, but then I made some silly errors also. Then he also like strictly said no, just now focus and play. Thank you. All the best to both of you. Congress MP Akhilesh Prasad Singh said the Jharkhand student agitation has largely ended after the JSC CGL exam cancellation. He said students are now seeking a CBI probe while defending Congress leaders amid the Dimagi Naxal row. He also criticized the Bihar government's handling of student protests and disputed claims that no students were injured in Jantar Mantar. था एक तरह से खत्म हो गया है। राहुल गांधी ने खुद भी हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखकर कहा था कि छात्रों से आप खुद भी बात कीजिए और बहुत हद तक उसमें कामयाबी मिली है। बहुत हद तक क्या, जो छात्र चाहते थे परीक्षा रद्द हो गई और आगे भी छात्र अब नया सवाल उठा रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। तो सीबीआई जांच के लिए तो सक्षम है नहीं स्टेट की गवर्नमेंट, वो रिकमेंड कर देगी। छात्रों के सवाल पर राहुल गांधी जी जो मदद कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी जो मदद कर सकती है वो करती है। और दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल की बात कही थी, उस पर पी चिदम्बरम ने कहा था कि हम दिमागी नक्सल के तौर पे हम गर्व करते हैं खुद को। और इस पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने निशाना साधा है कि जिस तरह से वो गृह मंत्री थे और उनके दौर में नक्सलिज्म परवान चढ़ा, तो क्या वो नक्सल के गतिविधियों में शामिल थे और इस तरह के आरोप लगाए थे, उस पर उन्होंने निशाना साधा है। अब उनकी बात को कोई गंभीरता से लेता नहीं है, मैं भी नहीं लेता हूँ। उनको अपना स्टेट पर कंसंट्रेट करना चाहिए। वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर है, वहाँ जो डेवलपमेंटल वर्क है, उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। बाकी जहाँ तक प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट का सवाल है, तो यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं, अभी तो जैन जी का इतना बड़ा आंदोलन हो गया, धर्मेंद्र प्रधान जी को जाना पड़ा, तो उन लोगों के भविष्य के बारे में चिंता करनी चाहिए सरकार को। जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, किसानों का आंदोलन रुकने का नाम नहीं लेता है, तो उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने एएनआई को इंटरव्यू में भी कहा है कि जिस तरह से पहले कांग्रेस पार्टी खुद को अब नक्सल पार्टी के तौर पे कन्वर्ट कर रही है, क्योंकि सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उस आइडियोलॉजी के समर्थक थे। तो क्या कांग्रेस पार्टी उस नक्सल नहीं, शायद उनको जानकारी नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में जो कुछ हुआ है आप भी समझते हैं, तो उस नक्सलियों के आंदोलन और नक्सलियों का जो आक्रमण था वो कांग्रेस लीडरशिप पर था। बीजेपी का कोई नेता नहीं मारा गया है और कांग्रेस के कई लोग नक्सलियों के आंदोलन में जा चुके हैं। नक्सलियों के आंदोलन की वजह से ही बंगाल में कांग्रेस की सरकार गई थी। तो अब बात, जिनको इतिहास नहीं मालूम है, जिनको जानकारी नहीं है, वो तरह तरह की बात कर सकते हैं। दूसरी तरफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ कहा है कि जो AK-47 से फायरिंग हुआ था वो सिर्फ हवाई फायरिंग था, छात्रों को कहीं पर गोली नहीं लगी है। अब हम लोग तो जो दूरदर्शन टीवी में जो दिखाई पड़ा, बाकी अब बिहार सरकार सफाई देती रहे और सुप्रीम कोर्ट का जो कुछ आएगा जजमेंट या उस पर जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो कहेंगे वो सब लोग मान लेंगे। और आखिरी सवाल, किरण रिजिजू ने यह कहा है कि एक भी छात्र लोग उसमें घायल नहीं हुए, किसी की हड्डी नहीं टूटी जो जंतर मंतर पे लाठीचार्ज हुआ। नहीं, तब इससे तो बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता है। आप ही लोग दिखाते हैं ना, मीडिया और अखबारों में ये खबर प्रमुखता से छपी, एक लड़की की आंख तक की ये चली गई, एक दो बच्चे चले गए और किसी को कुछ हुआ नहीं, ऐसा अगर कोई बोल रहा है तो ये तो फिर दिमागी जांच का विषय है। Prashant Kishore criticized the Bihar government over inadequate hospital facilities and questioned its preparedness following the Ashok Dam stampede. He called for better health care infrastructure and a stronger government response to disaster.
38 जिलों में आईसीयू खोला है, सदर अस्पताल लखीसराय में भी आईसीयू। भाई लोगों ने बताया कि कल जब ये दुर्घटना हुई तो सदर अस्पताल की हालत ये थी कि वहाँ पर एक आयुष का डॉक्टर था, कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, ऐसा लोगों का कहना है। और जो लोग कहें उसमें शायद पुलिस प्रशासन या अस्पताल वाले कुछ दावा दूसरा कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज सदर अस्पताल में घायलों में शायद एक आदमी भी सदर अस्पताल में नहीं है। अगर सदर अस्पताल की व्यवस्था अच्छी होती या बेसिक मिनिमम भी होता तो कम से कम जो घायल है वो वहाँ रहता। मैं तो अभी गांव से घूम कर आ रहा हूँ, वहाँ 4 लोग सानी समाज के हैं, वो वहाँ से वो चारों लोग, हमने पूछा भाई क्यों चले आए, ठीक हो गए? तो बोला नहीं भैया वहाँ दम घुट रहा था, वहाँ तो पंखा का भी व्यवस्था नहीं था, इसलिए छोड़कर चले आए। तो ये तो अस्पताल की और चिकित्सा की स्थिति है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अस्पताल की स्थिति अच्छी है और पुलिस की खराब है, या पुलिस की अच्छी है अस्पताल की खराब है। ओवरऑल जो स्थिति है कि जनता की जान की कोई कीमत नहीं है, वो चाहे डीएम महोदय हो, एसपी हो, एसडीएम हो, थाना हो, प्रशासन हो, अस्पताल हो, कोई दुर्घटना हो गई 1-2 दिन खबर रहेगी। आपदा के नाम पर सरकारी जनता के पैसे खजाने से कुछ पैसा बांट दिया और लोग भी धीरे धीरे इसी के आदी हो गए हैं कि कुछ नौकरी दिलवा दीजिए, कुछ राहत दिलवा दीजिए। लेकिन जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो तब तो इंसाफ होगा, उसकी कोई चर्चा नहीं है। होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। जब दुर्घटना हो गई तो पुलिस प्रशासन या अस्पताल की ओर से कोई त्वरित कार्रवाई वैसी नहीं दिखती है जैसा कि उनको करना चाहिए था। बाद में जब सरकार की ओर से आला मंत्री नेता लोग आए तो उन्होंने किसी पर अभी जवाबदेही तय नहीं की। कोई एक कांस्टेबल हवलदार भी सस्पेंड नहीं हुआ, उस पर जवाबदेही नहीं तय की गई। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए आपका, हमारा ही, पब्लिक का ही पैसा 4-4 लाख रुपया बांट दिया। ऐसा लग रहा है जो पैसा जो दिया जा रहा है वो तो बिहार के लोगों का पैसा है। तो सरकार गलती करे और जनता सफ़र करे और जनता के पैसे को ही बांट के अपनी जवाबदेही आपने पूरी कर ली। और घटना के बाद न घायलों के चिकित्सा की कोई व्यवस्था है, लोग अपने अपने गांव चले गए हैं, और मृतकों के लिए भी ऐसी कोई अभी व्यवस्था हुई नहीं। बस वही 4 लाख की बात जो है, जो जनता का पैसा है उसी को बांटकर नेताओं ने, व्यवस्था ने अपनी जिम्मेवारी को पूरा मान लिया। और अभी एक और जगह मैं जाऊंगा, हलसी में, जहां शायद एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हुई है, उनसे मिलेंगे। उसके बाद अगर कोई नई बात सामने आएगी तो आपको बताएंगे। सर ध्यान है साहब, लोगों डाउन करो। संजय लखीसराय में थोड़ा नीचे कर लिया, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो कल की ये दुखद घटना हुई है और प्रथम दृष्टया जो दिख रहा है लोगों से बातचीत करने के बाद, ऐसा लग रहा है कि प्रशासन ने इस पूरे प्रकरण को, इस पूरी व्यवस्था को लेकर वो गंभीरता नहीं दिखाई जो उनको दिखाना चाहिए था। क्योंकि ये कोई पहले दिन बात नहीं है। यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि श्रावणी मेले के दौरान सावन में इतनी भीड़ होती ही है, हर सोमवार को ज़्यादा भीड़ होती है। प्रशासन ने जितनी व्यवस्था करनी चाहिए थी, जितनी संजीदगी से मामले को देखना चाहिए था, वो नहीं किया। लोगों की शिकायत यहाँ के एसपी से भी है। ऐसा लोग बता रहे हैं कि जो भी यहाँ पर एसपी हैं शायद वो यहाँ रात में नहीं रहते हैं या फुल टाइम नहीं रहते हैं, उसका कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है। जो लोगों ने कहा मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। लेकिन उससे दुखद बात यह है कि कल यहाँ पर विजय सिन्हा जी भी आए थे, भारत सरकार के मंत्री ललन बाबू का भी ये क्षेत्र है। बिहार में कोई भी दुर्घटना होती है तो उसको सिर्फ चंद पैसों के मुआवजे के साथ लोग मामले को रफा दफा कर देते हैं। अभी तक किसी प्रशासनिक अफसर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डीएम, एसपी, एसडीएम, डीएसपी, थानेदार, भाई किसी की जान गई है, और 1-2 लोगों की नहीं, 7 लोगों की जान गई है। अभी भी कितने लोग घायल हैं, और एक भी हवलदार, कांस्टेबल भी निलंबित नहीं हुआ है। बस आपदा के नाम, आपदा कोष से कुछ पैसे दे दिए और लोगों की जान की कीमत 4 लाख रुपए लगा दी। जो घायल हुआ उसको 10-20 हज़ार रुपये दे दिया, मामला रफा दफा हो गया। तो एक जो सबसे बड़ी बात है वो प्रशासन की संवेदनशीलता को लेकर है कि आपने एक तो तैयारी नहीं करी, ये जानते हुए समझते हुए कि भाई यहाँ पर भीड़ होगी। दूसरा, जब घटना हो गई तो सरकार ने किसी दोषी को पहचान कर उस पर कम से कम कोई कार्रवाई करने, जवाबदेही तय करने की बात नहीं कही। एक खाली खाना पूर्ति करने के लिए जांच के आदेश दे दिया गया।
कौन जांच कर रहा है, किसकी जांच कर रहा है, किस विषय पे जांच कर रहा है, कुछ मालूम नहीं है। तो यहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो अपनी गलती थोड़ी ना बताएंगे, ऐसे खाना पूर्ति हो जाएगी। और उससे भी जो दुखद बात है कि जो लोग घायल हुए, जो मैं अभी एक गांव में गया था, वहाँ सहनी परिवार के 4 लोग घायल हैं। सारे लोग ये बता रहे हैं कि शाम होते होते सरकारी अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से घायल लोग खुद ही अपने अपने घरों में या प्राइवेट अस्पताल में चले गए। जहाँ अब आप खड़े हैं ये भी प्राइवेट हॉस्पिटल है। जो 2 लोग यहाँ पर आईसीयू में हैं इमरजेंसी में, मैंने पूछा भाई प्रशासन से आपको क्या मदद मिली है सरकार से, तो सर अभी तक 1 रुपया का भी कोई मदद नहीं मिला है। वर्बल कल विजय सिन्हा जी ने शायद डीएम को कह दिया कि आप इन लोगों को मदद कीजिएगा, डीएम ने भी सामने मंत्री महोदय कह दिया कि हाँ करेंगे, लेकिन परिवार को कोई मदद नहीं है। तो ये तीनों Bihar PJP President Sanjay Sarogi spoke on the PJP's new National Committee, the Jharkhand JSCC Student Protest Congress stand on Vande Mataram and the RJT's proposed Raj Bhavan March. बहुत बहुत बधाई जिन लोगों को राष्ट्रीय टीम में रखा गया है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने जो टीम बनाई है, इतनी बढ़िया टीम है। जो माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, महिलाओं को विधानसभा में लोकसभा में आरक्षण देना, हमारी 5-5 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस बार बहनें बनी है। नौजवान युवाओं को टीम में रखा गया है, जो अनुभवी हैं उनको रखा गया है। और बिहार से भी हमारे 3 नेता सिद्धार्थ शंभू जी राष्ट्रीय मंत्री बने, हमारे शिवेश राम जी माननीय सांसद राज्यसभा अनुसूचित मोर्चा का उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, हमारे पुनः ऋतुराज सिन्हा जी को पुनः राष्ट्रीय टीम में रखा गया। इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। इतनी अच्छी टीम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, इस टीम के नेतृत्व में आने वाले समय में भाजपा देश में और मजबूत होगी। और जिन राज्यों में हमारी सरकार नहीं है, उन राज्यों में भी इस टीम के नेतृत्व में हम सरकार बनाने में सफल होंगे। झारखंड में जो है प्रोटेस्ट जो चल रहा था जेएसएससी के एग्जाम को लेकर के, रद्द करने को लेकर के बातें स्टूडेंट की तरफ से कही जा रही थी, वो सीएम हेमंत सोरेन ने रद्द कर दिया है सारी चीज़ों को, क्या कहिएगा इस पर? नहीं, छात्रों को बधाई, लेकिन 25 दिन तक उन लोगों को संघर्ष करना पड़ा, भूख हड़ताल करना पड़ा। उसके बाद परीक्षाएं तो रद्द हुई, लेकिन जिन लोग इसके पीछे हैं, पेपर लीक के पीछे संगठित गिरोह बना के जो काम कर रहे हैं, छात्रों का जो भविष्य खराब कर रहे हैं, उसके लिए अभी तक सीबीआई इंक्वायरी जरूर माननीय मुख्यमंत्री झारखंड को करनी चाहिए। दिक्कत क्या है, जब आप पाक साफ हैं तो ऐसे संगठित गिरोह बना के छात्रों को भविष्य को खराब करने वाले लोगों को क्या दिक्कत है आपको सीबीआई इंक्वायरी की? और तेजस्वी यादव मार्च कर रहे हैं बिहार में, 25 दिन तक छात्र वहाँ भूख हड़ताल पर। इनको तो मार्च पहले करना चाहिए था झारखंड में जाकर हेमंत सोरेन के आवास पे। इनको दबाव बनाना चाहिए सीबीआई इंक्वायरी वहाँ हो, लेकिन इनको छात्रों से कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। कैसे छात्र आंदोलन के हार में अपनी राजनीतिक रोटी से की जाए। इसलिए झारखंड के छात्रों को बहुत बहुत बधाई, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी करानी ही चाहिए। जो आगे जो है कोई भी पेपर लीक न हो, इसके लिए और जो लोग इस संगठित गिरोह बनाकर ये अपराध कर रहे हैं उन लोग पर बिहार ने तो बनाया, बिहार ने तो कानून बनाया इस बार विधानसभा के अंदर 1 करोड़ रुपया तक जुर्माने की व्यवस्था की। इसको संगठित अपराध की श्रेणी में लाकर 8 साल तक का की सजा की और त्वरित सजा मिले, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना रही बिहार। ऐसे जिस तरीके से तेजस्वी यादव कल राजभवन मार्च करेंगे सर, छात्रों से उन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हैं। जिस तरीके से पेपर लीक का मामला बिहार में हमेशा देखा जाता है, मैट्रिक से लेकर के हर चीज़ का जो है पेपर लीक होता है, इसको लेकर के वो कल निकलेंगे क्या? नहीं, अच्छे तेजस्वी यादव जी को बिहार की याद तो आई कम से कम। नेता प्रतिपक्ष हैं, विधानसभा के सत्र में भी वो भाग नहीं लेते हैं, गायब रहते हैं। उनको विधानसभा के सत्र में रह के सुझाव देना चाहिए। 1-1 माह तक गायब थे। मैंने कहा इनको तो यात्रा निकालनी चाहिए थी झारखंड में जाकर। 25 दिन से छात्र वहाँ अनशन पर बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे। झारखंड के मुख्यमंत्री के आवास तक इनको यात्रा निकालनी चाहिए, लेकिन इनको छात्रों से मतलब नहीं है। अच्छे याद आए, निकाले यात्रा, लेकिन जो छात्रों का TRE 4 का जो जहाँ तक मामला है, सरकार ने
भेज दिया था बीपीएससी में, लेकिन कुछ उसमें क्योरी थी उनकी, तो पुनः सरकार भेज रही है। और पेपर लीक मामले में जो कड़ा कानून बिहार ने बनाया, विधानसभा में हम लोगों ने पारित किया 1 करोड़ तक जुर्माना, संगठित अपराध की श्रेणी में लाना, और अपराध और अपराध पर जो है तेजस्वी यादव या इनके दल को बोलने का जरा सा भी अधिकार है। इनका शासन सत्ता चलता था तो अपराध और अपराधियों पर को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। आज पिछले दिनों डीजीपी और गृह सचिव ने भी प्रेस वार्ता की, उसमें उन्होंने पूरा आंकड़ा दिया है कि पिछले साल के बनिस्पत इस साल हत्या, बलात्कार या संगठित अपराध में गिरावट आई है। सरकार भी तत्पर है, पुलिस को खुली छूट दी गई है, इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बन रहा है, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ अपराध और अपराधियों को नेस्ताभून करने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने लिया है। लगातार स्पीडी ट्रायल चल रहा है, कार्रवाई हो रही है। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष या निकाल रहे हैं तो निकालें, लेकिन उनको बिहार में रह के बिहार के लोगों की चिंता करनी चाहिए। कोई बहुमूल्य सुझाव है तो उनको देना चाहिए। That's all we have for now. Keep watching Mobile TV.